کہ MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون میں دوسری ملاقات طے ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا وفد کل دوپہر 3:30 بجے MQM کے مرکز بہادرآباد کا دورہ کرے گا۔ MQM اور نون لیگ کے مابین عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوگی۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا، دونوں جماعتوں میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان میں ہمیں قربتیں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں۔ میاں نواز شریف کا خصوصی پیغام لے کر مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے کراچی پہنچ چکا ہے۔ اس وفد میں جو ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق جو ہے شامل ہے۔ کل جو ہے MQM پاکستان اور مسلم لیگ کے مابین جو ہے دوسری ملاقات ہوگی۔ یہ اہم ترین ملاقات MQM کے مرکز بہادرآباد پر دوپہر 3:30 بجے ہوگی۔ اس ملاقات میں جو ہے MQM اور نون لیگ کے مابین عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی جائے گی، جبکہ MQM کی جانب سے نون لیگ کے سامنے جو ہے عام انتخابات میں اتحاد بنانے سے متعلق مطالبات بھی جو ہے سامنے رکھے جائیں گے۔ دونوں فریقین کی جانب سے آئندہ انتخابات میں مشاورت کے لیے تین رکنی کمیٹیوں کے نام بھی جو ہے سامنے رکھے جانے کا امکان ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے کراچی پہنچا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے وفد کی مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ جی، سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نیشنل پارٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ANP کے صوبائی رہنما ذاکر حنیف کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات سے عوام کی خدمت کا سلسلہ اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ تفصیلات جانیں گے سعادت حسین سے۔ بالکل، اس وقت میں باجا خان مرکز سندھ میں موجود ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور حل برداری کا بھی سلسلہ جو ہے اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے ذاکر حنیف صاحب موجود ہیں جو چیئرمین ہیں صوبائی الیکشن کے، ان سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، یہ بتائیے گا کہ انٹر پارٹی الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ماشاءاللہ حل برداری کا بھی اب آغاز ہو رہا ہے، کیا کہیں گے، کتنا بہترین ہے پارٹی کے لیے اور آنے والے انتخابات کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں 24 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ باجا خان مرکز آئیں اور ہماری انٹرا پارٹی الیکشن کی کوریج کرنے کے لیے۔ اس طرح ہے کہ ہماری پارٹی میں ہر 4 سال بعد باقاعدہ ممبرشپ ہوتی ہے اور ممبرشپ کی بنیاد پہ جو ہے اس کے بعد ہم اپنی بیسک وارڈ سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ پہلے وارڈز کی اثر نو دوبارہ تشکیل ہوتی ہے اور ان کی علم برداری وغیرہ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کی ایک ڈیٹ اناؤنس، اس دفعہ ہماری لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 15 نومبر ہے۔ اس کو 15 نومبر تک جو ہے ہم اپنے تمام وارڈ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے ڈسٹرکٹ کا الیکشن اناؤنس کریں گے۔ پھر 30 نومبر تک جو ہے ہم ڈسٹرکٹ کمپلیٹ کر لیں گے اور 15 جنوری تک جو ہے ہم پروویژنل الیکشن کرا دیں گے۔ یعنی کہ جو ہے یہ یونین کونسل سطح سے شروع ہو رہا ہے، پھر ڈسٹرکٹ، اس کے بعد۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں یہ چیز نہیں دیکھتے جو ہم نے ANP میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے گراؤنڈ لیول سے آنے والا شخص بھی جو ہے وہ ANP کی نمائندگی کر سکتا ہے، تو کتنا فائدہ مند ہوتا ہے پارٹی کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے؟ دیکھیں، ممبرشپ کی بنیاد پہ جو ہے یہاں دوبارہ اثر نو ہماری تنظیم سازی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں نئے بلڈ جو ہے آگے آتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے۔ اس کے ذریعے ایک جمہوری عمل ہے، ہم اپنی نرسری سمجھتے ہیں اپنے وارڈز کو اور وہاں سے جو لڑکے نکل کے آتے ہیں پھر ان کو آگے موقع ملتا ہے ڈسٹرکٹ میں اور ڈسٹرکٹ سے پھر اسی طرح وہ پروونس کا کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل، آپ نے جانا کہ ذاکر حنیف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ایک بہترین بنیاد ہے عوامی نیشنل پارٹی کی اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ نئے نمائندے سامنے آتے ہیں جو عوام کی خدمت کا سلسلہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو اسی مشن کو آگے کی جانب وہ لے کے آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کراچی پولیس کی نااہلی 14 اگست کو سوجا بازار تھانے کی حدود سے لاپتہ ہونے والی 4 سالہ عائشہ کا پولیس 3 ماہ بعد بھی سراغ نہ لگا سکی۔ 4 سالہ عائشہ 14 اگست کو بھیڑ میں نمائش کے علاقے سے غائب ہو گئی تھی۔ بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، کراچی پولیس کی یہ نااہلی سامنے آ رہی ہے کہ 14 اگست کو سوجا بازار تھانے کی حدود سے لاپتہ ہونے والی 4 سالہ عائشہ کا پولیس جو ہے وہ 3 ماہ بعد بھی جو ہے وہ سراغ نہ لگا سکی ہے۔ 4 سالہ عائشہ جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے وہ تقسیم کے اندر اپنے والدین کے ساتھ آئی ہوئی تھی، جو کہ بھیڑ میں جو ہے وہ نمائش کا جو علاقہ ہے وہاں سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ لاپتہ بچی کے والد کی مدعیت میں سوجا بازار تھانے میں جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ جبکہ ہماری ان کے والد سے بات ہوئی، ان کا والد جو ہے اس کا کہنا ہے کہ 4 سالہ عائشہ کو زمین کھا گئی آسمان،
कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस की जानिब से बच्ची को ढूंढने के लिए कोई भी ताउन जो है वो नहीं किया जा रहा है। 14 अगस्त से बच्ची लापता है, छोटी बच्ची है। वालिदा भी और वालिद दोनों अपनी मददात के तहत जगह जगह ढूंढ चुके हैं, जेडीसी जा चुके हैं, पुलिस के पास जा चुके हैं, दीगर हुकाम के पास जा चुके हैं, कहीं पर पता नहीं लग सका। गवर्नर सिंध का इवेंट था ये 14 अगस्त वाले दिन जहां से ये बच्ची लापता, जबकि इसके ऊपर जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी जो है उस वक्त जब ये बच्ची लापता हुई थी ऐलान भी किया था, लेकिन उसके बावजूद बच्ची जो है वो अभी तक 3 माह हो चुके हैं, 3 माह से जायद होने वाले हैं। जैसे आपने भी कहा कि गवर्नर सिंध का ये जो है इवेंट था जहां से बच्ची गायब हुई, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग थी, सिक्योरिटी थी, वहां पर कैमरे लगे हुए थे, कहीं भी ये बच्ची स्पॉट नहीं हुई। ठीक है, अनुषा से भी बात करेंगे। बच्ची के वालिद हैं असगर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि बच्ची का अभी तक कोई सुराग ना लग सका? मैम अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया, और जो है ना हमने बहुत भाग दौड़ करी है, बहुत आगे पीछे गए, हर जगह जो है ना फरियाद करी है, हर महकमे में हमने दरख्वास्त दिए, गवर्नर साहब से भी मुलाकात की, वो गुजारिश की थी, और जो है मैडम हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी तक हर जगह कहीं एजेंसी वाले ये कहते हैं कि आप हमारे पास आए, 3 दिन में आपकी बच्ची आएगी। जैसे एजेंसी वाले जो होते हैं, CIA वाले, ADC वाले, जो भी इदारे के होते हैं, वो सब यही बोलते हैं कि मिल जाएगी। आज देखें 3 महीने हो गए, 3 महीने में इन्होंने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। मैम हम तो मियाँ और मेरी वाइफ हम इतने रात दिन परेशान हो रहे हैं। बस देखें हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारा दिल इतना छोटा नहीं है, क्योंकि लोग बहुत, हम तो परेशान हो ही रहे अपनी बच्ची के लिए, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा। सबसे यही फरमाइश वो कर रहे हैं कि हमारी बच्ची कहीं से भी बाजियाब करा दें। जी अच्छा, असगर साहब ये बताइएगा कि आपको कोई CCTV दिखाई गई या आपने खुद कोई CCTV निकलवाई जिससे पता चल सके कि बच्ची किसके साथ चली गई? वो गवर्नर साहब के प्रोग्राम के अंदर ड्रोन कैमरे चल रहे थे और GPS मशीन चल रही थी। हम उसी में यही कह रहे थे कि इसमें देखें शायद कोई और कोई आदमी वगैरह कोई भी शख्स उस बच्ची को उठा के या सूंघा के या बुरखे में डाल के ऐसे लेके जा रहा होगा। वो ये कहते हैं कि अभी तक हमारे भाइयों साहब ने भी जो है उनको दरख्वास्त दी थी और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और दूसरा ही जो है अपना हर जगह हमने फरियाद भी करी है, DDC वालों को भी हमने दरख्वास्तें दी हैं। कहीं से भी कुछ हमारे लिए ताउन का तो कोई सिलसिला चल ही नहीं रहा कहीं पे भी। हर महकमे में जो बच्चों को इदारे होते हैं वहाँ भी हम गए और जो कैमरे की कोशिश की, जिस पॉइंट पर हम खड़े थे उस पॉइंट के कैमरे खराब खड़े थे और जो है ना बहुत पीछे की दिखा रहे, वहाँ से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तो दुनिया वो मट्टी चढ़ी हुई थी ना कैमरों में, सिविक सेंटर वाले जो 2 कैमरे लगे हुए जगह जगह, उसमें तो साफ दिख नहीं रहा। जी अच्छा ठीक है असगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनुषा, बच्ची के वालिद ने हमें ज्वाइन किया, हमें उनकी तरफ जाना पड़ा था। आपसे मैं वही क्वेश्चन दोबारा करूंगा कि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा सख्त थी क्योंकि वो गवर्नर सिंध का प्रोग्राम था। क्या बच्ची कहीं भी मॉनिटर नहीं हुई, कहीं भी स्पॉट नहीं की गई? मूसा बिल्कुल, देखिए जब ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त को हम खुद थाने गए थे और थाने जाकर जब मॉनिटरिंग रूम जो बनाया गया है सोल्जर बाजार थाने में वहां पर देखा था तो उस वक्त की जो फुटेज हमें दिखाई गई थी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तकरीबन जो है वो काफी हजार लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोई ऐसा CCTV फुटेज नहीं है जहां से बच्ची को नजर आए कि बच्ची को कौन उठाकर लेकर के यहाँ किसी ने अगवा किया है, क्या किया है। ये एक कारकर्दगी पर पुलिस की सवालिया निशान है कि वहां पर इतना हुजूम था, उसके बावजूद 4 साल बच्ची लापता हो गई। और गवर्नर सिंध का इवेंट था, ये भी नहीं कि कोई आम बंदे का इवेंट था, गवर्नर सिंध का इवेंट था। वालिद का बच्ची का वालिद फरियाद करता रहा कि उसकी बच्ची किधर गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 2 अल्फाज बोलकर वो साइड हो गए, बच्ची को ढूंढने में बिल्कुल कोई मदद नहीं की उन्होंने। कराची पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है, सोल्जर बाजार पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। जो अगवा बनाए तावान जो सेल है पुलिस का वो क्या कर रहा है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस का क्या कर रहा है, SIU क्या कर रहा है। ये एक सवालिया निशान है कि तमाम तर इदारे पुलिस के एक्टिव है। IG सिंध और कराची पुलिस के चीफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बच्ची को ढूंढने में नाकाम है। बच्ची के वालिद की फरियाद नहीं सुनी जा रही। ये पूरे पुलिस के महकमे के ऊपर एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो
मौजूदा हुकूमत है, ये उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि 4 साल बच्ची आयशा का वालिद जो है वो रोता हुआ जगह जगह जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की फरियाद कर रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ये हुकूमती इदारों समेत जो हमारी सिंध पुलिस है, हमारी कराची पुलिस है, उन सब के ऊपर जो है ये एक सवालिया निशान बन चुका है। ठीक है, ये सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर कि एक छोटी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि मॉनिटरिंग सेल वहाँ पर था, वहाँ पर CCTV कैमरास मौजूद थे। असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और ये बताइएगा कि जब बच्ची गुम हुई उसके बाद से अब तक क्या किसी ने आपके साथ कोई राब्ता किया, क्या आपकी बात हुई किसी इंतजामिया के लोगों में से? मैम, मुलाकातों तो सबसे हो रही है, लेकिन जो है ना वो बच्ची बाजियाब नहीं हो रही है टाइम से भी। मैं तो करीब हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं हो रही। किसी अमीरजादे की बच्ची होती तो वो कितनी जल्द से जल्द बाजियाब हो जाती, भाग दौड़ लग जाती, लेकिन अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो सब जगह जाता हूँ, गवर्नर साहब से भी उसमें गया था, लेकिन वहाँ भी दरखास्त दे गई है सब जगह, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुई है, कहीं से भी कुछ नहीं हुई है। कल भी मैं जो गुलशन इकबाल गया था वहाँ पर बच्चों के इदारे में, जो बच्चों की जो पुलिस है उनके पास भी गया था, उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। इस तरह के जवाब मिलते हैं सर, मेरे तो इतना दिल दुख रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं। हमारी इसकी औलाद होती इसके ऊपर आती तो ये क्या जिंदगी कैसी गुजरती, जैसे मेरे पे गुजर रही है, ये तो कोई भी नहीं समझ पा रहा। मेरा दिल के दर्द को कोई समझ पाएगा तो वो अल्लाह का ही बंदा ही होगा। अभी तक कोई अल्लाह का ऐसा बंदा नहीं है जैसे ऊपर से कोई समंदर है, समंदर के अंदर अंगूठी गिर जाए, अगर उसको कोई अल्लाह निकालता है या कोई बच्चेरा ही आके निकालता है, मेरे को वो बंदा ही नहीं मिल रहा जो बच्ची को मेरे को लाके मेरे पास किया है। मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा। जी असगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अनुषा, ये बताइएगा कि जुलाई के महीने में 3 बच्चियां लापता हुईं, तीनों मिल गईं। अब ये आयशा लापता हुई है 14 अगस्त को और इसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। क्या वजूहात हैं कि पुलिस इस बच्ची तक पहुंचने में इतनी नाकाम है? क्या ये तो नहीं हो सकता कि कहीं पहुंच गई हो और मामलात कुछ और हो बिहाइंड द कर्टन? मूसा, बिल्कुल देखिए, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई कि 14 अगस्त से लेकर नवंबर शुरू हो चुका है, 3 माह से जायद का वक्त होने वाला है। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 दिन होने वाले हैं। अब बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद तफ्तीश जो है हमारी कराची पुलिस की वो भी सवालिया निशान है। तफ्तीशी जो हुक्काम है, तफ्तीशी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन जो है कराची पुलिस की या सिंध पुलिस की, वो सवालिया निशान बन गई है। निगरां सेटअप आ गया, निगरां IG आ गए, तमाम तर अफसरान निगरां आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी बच्ची 4 साल बच्ची है वो गुम हो गई है, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। IG सिंध की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि फौरन जितने लोग हैं उनकी जो है वो सुनी जाए। एडिशनल IG साहब की जानिब से दावे किए जाते हैं कि SSPs के दरवाजे खुले हुए हैं, DIGs के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आम आवाम के लिए जो दरवाजे खुले हुए हैं अगर, तो इस बच्ची के वालिद की फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही? ये बच्ची का वालिद भटक रहा है, जगह जगह भटकता जा रहा है, हुकूमती इदारों के पास जा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है। ये सोल्जर बाजार पुलिस की भी नाअहली है, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की नाअहली है, ये SSP ईस्ट, DIG ईस्ट, एडिशनल IG कराची, IG सिंध, सबकी कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है कि एक 4 साल बच्ची लापता है और उसका वालिद जो है वो 3 महीने से अपनी बच्ची को अपनी मदद आपके तहत ढूंढ रहा है। लेकिन इस बच्ची के वालिद को सुनने वाला कैसा लगता है? लेकिन हमने 23 अगस्त को इनसे राब्ता किया, अभी फिर हमने इस मसले को इशू उठाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि सिटी 21 न्यूज़ ने ये मामला उठाया है तो ये जो आला हुक्काम है पुलिस के जो बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, अपनी इनकी आंखें खुलेंगी और ये इनकी थोड़ी कार्रवाई तेज होगी। लेकिन इसके बावजूद, अगर हमारी खबर के बावजूद आला हुक्काम, हुकूमती इदारों की, पुलिस अफसरान की आंखें नहीं खुलती हैं तो इससे ये साफ जाहिर है कि अफसरान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जी बिल्कुल, अफसरान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बहुत शुक्रिया अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी। बच्ची के वालिद असगर हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ और उम्मीद है कि आयशा जल्द से जल्द आपको मिले। बिल्कुल।